Hello everyone, welcome to DCA online platform. Myself Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy, Aurangabad. Today we are going to see the solution of differential equation. In last video we seen that the solution of differential equation of first type. In today's video we are going to see the solution of remaining three types of differential equation. So in that one, the second type of differential equation is solution of differential equation of the types in which we get the variable separable form by substitution. Means second type is variable separable form by substitution. The second type VSF, variable separable form by substitution. VSF by substitution. So in this type of examples, if we have to solve the differential equation, first of all we have to put the appropriate substitution. So let's see one example. Solve the differential equation. Solve the differential equation. Solve the differential equation dy by dx equal to 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर. अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाना होगा. और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाना है तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डायरेक्टली या एडजस्टमेंट से VSF नहीं मिलेगा. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो वेरिएबल से एक्स एंड वाई जो मिक्स फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू पुट करना है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो व्हाट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 whole square number 1. Now your appropriate substitution is putting 4x plus y plus 1 is equal to v. अगर इसकी वैल्यू v पुट करेंगे तो आपको VSF मिल सकता है. लेकिन अगर 4x plus y plus 1 इक्वल टू v है तो dy by dx की वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x we get here derivative of 4x with respect to x is 4 plus derivative of y with respect to x is dy by dx plus derivative of 1 with respect to x 0 and it is equal to derivative of v with respect to x dv by dx. So transferring 4 to the right side we get here dy by dx is equal to dv by dx minus 4. So now putting the values 4x plus y plus 1 equal to v at the right side and the dy by dx, the value of dy by dx is dv by dx minus 4. We get here equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes तो क्या बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन dv by dx माइनस 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर. अभी क्या करना है, ये माइनस 4 को राइट साइड में ट्रांसफर करो और जो टोटल टर्म लेफ्ट साइड में dx राइट साइड में तो VSF मिल सकता है. तो उसके लिए पहली स्टेप क्या आएंगी, dv by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 4. Now transferring v square plus 4 to the left side and dx to the right side, we get here 1 upon v square plus 4 dv is equal to dx and it is nothing but the variable separable form. and जब भी variable separable form मिलता है तो उसके आगे की स्टेप होती है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. तो अभी इसको इंटीग्रेट करो दोनों तरफ. इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, integrating on both side, integrating on
both side. So here we get integration of 1 upon v square plus 4 means 2 square dv is equal to integration of 1 dx. So now by property 1 upon a square plus x square, we get the integration here. 1 by a means 1 by 2 tan inverse x by a, that means tan inverse v by 2 is equal to integration of 1 with respect to x, and the integration constant is c. Again by multiplying 2 we get here tan inverse of v by 2 is equal to 2x, and अगर कांस्टेंट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वो कांस्टेंट टर्म ही रहेगा. नाउ बाय बैक सब्स्टिट्यूशन अभी v की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं फिर से 4x plus y plus 1. सो वी गेट हियर tan inverse of 4x plus y plus 1 upon 2 is equal to 2x plus c, and which is required general solution. That means जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था dy by dx इक्वल टू 4x plus y plus 1 इक्वल टू 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, तो इसका ये क्या आ गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. तो ये था सेकंड टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करके वे शेप मिलता है. तो इसके बाद अपन देखने वाले दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी इसके बाद अपन देखते हैं पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. थर्ड टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये पहले समझ लेंगे. कौन से टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे या बोल सकते, तो उसका डेफिनेशन पहले देखेंगे. तो इसमें द डिफरेंशियल इक्वेशन which can be written in the form dy by dx is equal to function in y by x, f of y by x. तो ऐसे फॉर्म में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जिसको dy by dx इक्वल टू कोई भी फंक्शन, लेकिन पूरा फंक्शन किस में होना y by x में, dy by dx इक्वल टू f of y by x is called as homogeneous differential equation. मतलब ऐसा इक्वेशन कि जिसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू फंक्शन इन y by x. और इसमें सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज पर्टिकुलर होता है. सिर्फ इसमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन एग्जांपल को आइडेंटिफाई करना है, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है और y by x की वैल्यू v पुट करना है. तो जैसे अपन इसके जनरल स्टेप देख लेते. जनरल स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन. तो सबसे पहले लेट dy by dx इज इक्वल टू f of y by x, नंबर 1. हाँ, अभी सबसे पहले इसमें पुट करना है, पुटिंग y by x इज इक्वल टू v. अगर y by x की वैल्यू v पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू आएगा, x को राइट साइड में ट्रांसफर करो, v इंटू एक्स. dy by dx की वैल्यू फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू v as it is, डेरिवेटिव ऑफ x 1
प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो देयर फॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयर फॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पहले पुट करो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट साइड में एफ ऑफ वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स की वैल्यू v पुट करना है, एफ ऑफ v दैट मीन्स फंक्शन इन v। और अभी इसके बाद वी एस एफ कैसे मिलेगा, तो v को राइट साइड में ट्रांसफर करो, तो वी गेट हियर देयर फॉर एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ v माइनस v। और अभी ये टोटल टर्म लेफ्ट साइड में एक्स डी एक्स राइट साइड में, तो वी गेट हियर 1 अपॉन एफ ऑफ v माइनस v डी वी इज इक्वल टू, राइट साइड में एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एक्स नोमिनेटर में, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और ये क्या आ गया, यहाँ पे देखो फंक्शन इन v डी वी, फंक्शन इन x डी एक्स। तो ऐसा फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म VSF। और इसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ v माइनस v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। तो ये हो गए कॉमन स्टेप। इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, तो फंक्शन मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एग्जांपल है ये इस टाइप का, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके एक कॉमन स्टेप है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन इन वाई बाई एक्स में कन्वर्ट करो। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बाद में सब्स्टिट्यूट करना है, वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वी। वी को राइट साइड में ट्रांसफर, पूरा राइट साइड में फंक्शन आएगा वी में, उसको लेफ्ट साइड में एक्स डी एक्स राइट साइड में वी एस एफ मिलेगा, बाद में इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल अपन देख लेते जिससे आपको ये स्टेप समझ में आएंगे। तो चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसके ऊपर का, लेट्स सी एग्जाम्पल। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। सबसे पहली स्टेप क्या थी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फंक्शन इन वाई बाई एक्स राइट साइड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली क्या करो, यहाँ पर राइट साइड में एक्स से सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा y अपॉन एक्स। एक्स से डिवाइड करना मतलब रूट में एक्स स्क्वायर से, तो रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। और अभी इसको इक्वेशन 1 दे दो। और अभी इसके बाद क्या होती है नेक्स्ट स्टेप, पुट करना y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा, v इंटू एक्स। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वी गेट हियर डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बाय राइट साइड में क्या करना है, प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डी वी बाई डी एक्स। अगर ये दो वैल्यूज पुट करेंगे, जहाँ पे y बाई एक्स है वहाँ पे v पुट करना है, और जहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो उसकी वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या मिलेगा,
तो लेफ्ट साइड में v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में जहाँ पे y बाय एक्स है वहाँ पे v पुट करना है, तो v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। अभी सिंप्लीफिकेशन में लेफ्ट साइड का राइट साइड का v कैंसिल हो जाएगा। अभी टोटल जो है राइट साइड में क्या बचा है, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो और x ds राइट साइड में, तो वी गेट हियर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एंड ये क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट। नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स वी इक्वल टू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अभी ये होगा सॉल्यूशन, लेकिन ये v में आ गया एंड गिवन क्वेश्चन x में था, तो बाद में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना, बैक सब्स्टिट्यूशन। तो v की वैल्यू फिर से क्या पुट कर देना है, y बाय एक्स। देयरफॉर वी गेट हियर साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी, एंड ये आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके कॉमन स्टेप पे याद रखना, पहले y बाय एक्स में कन्वर्ट करना, y बाय एक्स की वैल्यू v पुट करना, तो dy बाय एक्स की वैल्यू आएंगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वो वैल्यू पुट करना, VSF निकालना, इंटीग्रेट लेना। इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी फोर्थ टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो देखने वाले अपन अभी फोर्थ टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, फोर्थ टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही बोल सकते हैं। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन। कौन से टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p of x into y equal to q of x. So where p of x and q of x are the functions in x. और दूसरे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे ये होगा y एंड x में डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे x एंड y, मतलब x को y रिप्लेस करो x y के साथ और y x के साथ, तो क्या मिलेगा, dx बाई dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y। ये दोनों में से कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऐसे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप्स is called as linear differential equation, linear differential equation। अभी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसा फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सॉल्यूशन के स्टेप देख लेते। स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन, स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब स्टेप फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। सबसे पहले क्या करना होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स।
स्टेप सेकंड write the values of p of x is equal to comma q of x is equal to, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो और p ऑफ x के जगह जो भी वैल्यू है, जो भी फंक्शन है x में वो वैल्यू, और q ऑफ x के जगह जो वैल्यू है फंक्शन वो लिख देना। स्टेप थर्ड, तो स्टेप 3 आएगा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पे बोल सकते हैं अपन IF, शॉर्ट फॉर्म उसका, बाय द फॉर्मूला फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय द फॉर्मूला। IF is equal to e raised to integration of p of x dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करना है। स्टेप 3 आएगा। स्टेप फोर्थ, एक बार अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया तो उसके बाद मिलने वाला है सॉल्यूशन, उसके लिए फॉर्मूला। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ given differential equation is, the given differential equation is given by, तो the solution of given differential equation is given by, उसके लिए फार्मूला याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x dx एंड प्लस c। तो ये फॉर्मूला हो गया सॉल्यूशन के लिए। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व करना, तो आपको क्या मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये टोटल मेन 4 स्टेप है, वो याद रखना। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। स्टेप सेकंड, राइट द वैल्यूज ऑफ, इसके साथ कंपेयर करो, पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो लिख दो, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दो, क्योंकि वो दोनों वैल्यू बाद में लगने वाले हैं। अभी पी ऑफ एक्स से क्या मिलेगा, स्टेप 3 में फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई ऑफ बाय द फार्मूला। ये फार्मूला याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उसके लिए फार्मूला क्या है, स्टेप फोर्थ, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अभी ये जो 4 स्टेप्स है तो वो अपन एक एग्जाम्पल देके, अगर एक एग्जाम्पल लिया और उसको सॉल्व करेंगे स्टेप से तो आपको पूरे आइडिया क्लियर होंगी हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये होगा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका अपन सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो चारों स्टेप रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले लिखना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो अभी क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहली टर्म dy बाई डी एक्स होना, तो ये cos x नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या करना है, डिवाइड करो। डिवाइडिंग बाय क्या आएगा स्टेप, डिवाइडिंग बाय cos x, क्योंकि पहला स्टेप क्या आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो cos x मतलब फर्स्ट टर्म dy बाई एक्स ही होना चाहिए, cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा,
dy by dx is equal to apply dy by dx plus sin x upon cos x tan x into y इक्वल टू 1 बाय cos x, ये आएगा sec x। तो अभी ये आ गया स्टैंड फॉर्म में dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x। अभी क्या करना है इसको, ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। कंपेयरिंग above equation with dy by dx plus p of x into y equal to q of x, we have क्या करना है, p of x q of x की वैल्यू लिख दो। तो therefore p of x की वैल्यू क्या है, इसके साथ कंपेयर करो। p of x जहाँ पर है उधर है tan x, q ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो q ऑफ x जहाँ पे उधर है sec x। ये हो गए दो वैल्यूज p ऑफ x q ऑफ x। p ऑफ x की वैल्यू tan x है, q ऑफ x की वैल्यू sec x है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। अभी इसमें वैल्यू पुट करो, देयरफॉर वी गेट हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x की वैल्यू क्या है, tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या था, log ऑफ mod ऑफ sec x या log ऑफ sec x। देयरफॉर IF इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ sec x एंड e रेस टू लॉग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि e का लॉग का बेस क्या है e, ये कितना आएगा सिर्फ sec x। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, sec x। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गए मतलब थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखना। देयरफॉर या नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation is given by, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स है ना डी एक्स प्लस सी। ये हो गया फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sec x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, फिर से इधर sec x। हाँ, q ऑफ x क्या था, यहाँ पे लिख दिया अपन ने पहले, q ऑफ x क्या है sec x एंड इंटू डी एक्स प्लस सी। तो sec इंटू sec sec स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल नहीं लगना इसलिए y पहले लिख सकते हैं। तो y इंटू sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx एंड sec स्क्वायर x का स्टैंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो y इंटू sec x इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी, ये प्लस सी एज इट इज। तो ये आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब जो चार स्टेप थे वो ऐसे अपन कन्वर्ट करके, सबसे पहले स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना, पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखना, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, और सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ऐसे अपन कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, है ना, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द application of differential equation. So okay, thank you.